زہر صہبائے عرفان محمد کہ بے خود ہیں غلامان محمد۔ آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر۔ ہم موجود ہیں اس وقت خانقاہ نیازیہ میں۔ یہ وہ دیار ہے جو 300 سال پرانا ہے، شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں خواجہ غریب نواز کا روحانی جانشین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ ہے اور اس روزے کی رونق اس خانقاہ میں دیکھتے ہی بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ خانقاہ نیازیہ کے پربندھک شبو میاں نیازی اور خاندان کے دوسرے تمام لوگ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ رمضان کو لے کر یہاں کس طرح کی تیاری ہے، کس طرح لوگ یہاں عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ خانقاہ نیازیہ کی بات کریں تو یہ وہ خانقاہ ہے جس نے دنیا بھر کو جو سوہارد کا ایک ایسا میسیج دیا ہے کہ جب جب بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں تو گنگا جمنی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ روایت لگ بھگ کب سے چلی آ رہی ہے؟ جب سے خانقاہ قائم ہوئی ہے اور حضرت شاہ نیاز احمد قبلہ تشریف لائے یہاں پر سے، تبھی سے جو روایت ہے اسی دن سے قائم ہو گئی اور ابھی تک بدستور اللہ کا فضل ہے قائم ہے۔ جو صوفیزم جو بھی ہوتا ہے، روح ہے اسلام کی، اس پہ عملی جامہ پہنا جاتا ہے اس خانقاہ میں، کیونکہ یہاں پر پیران پیر دستگیر اور خواجہ غریب نواز کے روحانی جانشین ہیں، تو اس لیے لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہاں جب آئیں گے تو یہاں پر روحانی، جسمانی، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ تو وہ چیز ابھی تک برقرار ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اگر ہم تھوڑا اور جانکاری کرنا چاہیں شاہ نیاز احمد صاحب کے بارے میں، تو جیسے کہاں سے تشریف لائے اور پھر کس طرح سے انہوں نے یہاں جو ان کے اجداد کا تعلق شاہان بخارا سے تھا، جن کا پایا تخت اندھی جان تھا، وہاں سے تشریف لائے اور یہاں پر دلی میں تعلیم حاصل کری حضرت مولانا فخر پاک علیہ رحمہ کے مدرسے میں، اور ان کے روحانی جانشین اور خلیفہ اور ان کے حکم سے بریلی تشریف لائے اور یہاں پر پہلی خانقاہ اور مدرسہ قائم کیا جو 300 سال پرانا تھا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی طلباء تھے، جن میں کچھ نام ہیں قابل ذکر ہیں: کندن لال اشکی، منو لال فلسفی، راجہ رتن سرشار وغیرہ، جو ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جو آج کل کے طلباء پڑھ بھی نہیں سکتے اس چیز کے، اتنا دقیق اردو اور پرشینائز اردو تھی اس زمانے کی۔ جو ان کو تعلیم کا اثر تھا، جو انہوں نے فیض حاصل کیا، تعلیم حاصل کری اتنے بڑے مدرسے میں اور اتنے بڑے پیر کے دست پہ بیعت ہوئے اور ان سے سب شرف حاصل کیا۔ اور یہاں جو روایت ہے، یہ ظاہر بات ہے جو گنگا جمنی تہذیب جو ہے یہ خانقاہوں کی دین ہے، خاص طور سے خانقاہ نیازیہ کی۔ جتنی اچھی باتیں ہیں صوفیزم کے اندر ہیں، جو حب الوطنی، اخلاق، انسانیت، بھائی چارہ، اپنے اوپر اپنی اصلاح کرنا اور اپنے نفس کو قابو رکھنا، یہ تعلیمات ہوتی ہے خانقاہ نیازیہ کی، اس پہ عمل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جو بھی یہاں پر آ گئے وہ یہیں کے ہو گئے، اس میں کشش ہے اس خانقاہ میں، اور یہ اس کا عملی جامہ میں پہنایا جاتا ہے، تو اس میں اثر ہوتا ہے لوگوں پہ، جو بھی آتے ہیں وہ، اور لوگوں پہ دنیا میں اس کی خوشبو اور اچھائیوں کو اور پھیلاتے ہیں۔ خانقاہ کی ایک خاصیت اور بھی ہے جو ہم لمبے وقت سے یہاں دیکھ رہے ہیں، سنگیت کی بہت بڑی ہستیاں یہاں تشریف لاتی رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ عقیدت کا اظہار کرتی ہیں کہ یہاں انہیں اجازت لینی پڑتی ہے اگر اس بیلٹ میں وہ کہیں بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ سنگیت کا جو روحانی کنیکشن ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ہم شبو میاں سے جانیں گے۔ دیکھیے، جتنے بھی علوم و فنون ہوئے اور اس کی سرپرستی خانقاہ نیازیہ سے ہوتی رہی ہے، تو ظاہر بات ہے جو فنکار حضرات ہیں ان کو شہرت کی، پیسے کی کسی کمی نہیں ہے، مگر وہیں سر جھکاتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں جہاں پر ان کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں جیسے بھی جتنے بھی گھرانے ہیں، 90% یہاں کے مرید ہیں، گنڈا بند شاگرد ہیں اور فیض حاصل کرا ہے، اور ان کا کہنا ہے جب ہم حاضری دیتے ہیں تو ہمیں عروج ملتا ہے اور نام روشن ہوتا ہے، اور پورے دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی خوشبو کو، اس کی اچھائیوں کو۔ کئی استاد نام ہیں ایسے جنہوں نے یہاں کے پروگرام بھی دیے ہیں، ان میں اگر کچھ ہم نام جاننا چاہیں۔
नाम की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। जो सबसे पहले पद्म भूषण का जिनको राजेंद्र प्रसाद जी ने अवार्ड दिया है, मुश्ताक हुसैन खान साहब, वो यहीं के गुलाम थे और शागिर्द भी थे यहाँ पर अपने फ़न के लिए। और उसके बाद जितने ज़्यादातर पद्म भूषण, पद्म श्री और जो भी है इस खानका से वाबस्ता लोग हुए हैं, इतने कहीं से नहीं हुए। जैसे पद्म भूषण निसार हुसैन खान साहब, पद्म भूषण मुश्ताक हुसैन खान साहब, पद्म भूषण राशिद खान साहब और बेगम अख्तर वगैरह वगैरह, और मिर्जू महाराज, उनके वालिद, उनके चचा शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, और तबले का जाकिर हुसैन, पद्म भूषण सुल्तान खान साहब, और सारंगी नवाज और सितार नवाज, तबले को गायन वादन नृत्य शैली में जितने भी ज़्यादातर यहाँ से ही शागिर्द हैं और यहाँ पर घंटाबंद हैं और मुरीद हैं यहाँ के। बेगम अख्तर, अभी आपने नाम सुना होगा बेगम अख्तर का। बेगम अख्तर एक संगीत का बड़ा नाम है और उन बेगम अख्तर की शुरुआत इसी खानखा से हुई थी। जब उनसे कहा गया, जो पीर थे उनके, उन्होंने कहा कि ये गज़ल गाइए, तो उसके बाद उन्होंने जो मकबूलियत हासिल की वो फिर देखते ही बनती थी। एक किस्सा भी है बहुत मशहूर, जहाँ से आप इंटरव्यू ले रहे हैं वहीं यहीं का था। वो बहजाद लखनवी साहब ने, मेरे वालिद साहब कबला थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने मगरिब के से पहले कबल कहा कोई नई गज़ल कही है, तो उन्होंने कहा था, जो जितने अशार को याद हैं, वो कब्ज़े में थी बहार अभी कल की बात है, दामन था तार तार अभी कल की बात है, अब शेख कह रहा है कि काबा है और जा, काबा था कुए यार अभी कल की बात है, ये मैं बदल गया हूँ कि साक़ी बदल गया, हर शय पे था खुमार अभी कल की बात है। बेगम अख्तर यहाँ बैठी थी, उनसे कहा तुम तर्ज बनाओ, गाओ। तो यहाँ पर तो सबने यहीं से फैज़ पाया है और नाम हुआ, वो समझते थे लोग। तभी तो यहाँ पर हर मज़हब और फ़िरक़ा तबक़े का लोग बग़ैर भेदभाव के यहाँ पर आते थे और फैज़ पाते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। किसी इल्म का आदमी हो, उलूम फ़नून, सब फ़नून के लोग यहाँ पर आते थे और फैज़ पाते थे। ये गंगा जमनी तहज़ीब है और इसकी जो खूबियाँ हैं और सब है, जैसे गुलदस्ते में सब रंग के फूल और खुशबू कहते हैं, ये गुलदस्ता है खानकाह नियाज़ी अपने आप में। और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, ज़ाहिर बात है। और अमली शक्ल में यहाँ पर जहर उतारा जाता है, जानवरों का, इंसानों का भी, सब ख़ास तौर से इंसानों को जो जहर होता है वो सबसे ख़तरनाक है। गर्म खून और जो मजहबी जुनून होता है उसको उतारा जाता है। सब अच्छाई का काम करो, अमली शक्ल में पेश करो जो से इस्लाम की तालीमात हैं। जैसे इस माह रमज़ान में बाबरकत महीना है और इसमें कुरान नाजिल हुआ है, कुरान को पढ़ें, अमल करें उस पर, कुरान हदीस और रसूल ने बताया जो रास्ता है सुन्नत पे अमल करें। यही बात है, अपने नफ्स को काबू में रखें। ज़ायद नमाज़ें इसीलिए हैं कि मसरूफ़ रहे आदमी उसकी याद में, खाली ना बैठे, इधर उधर बातों में न पड़े। और लोगों पे जो ज़कात भी है इसी महीने में हुआ, जो साहिब निसाब हैं उन पर एक हिस्सा जो है फ़र्ज़ कर दिया गया है कि कोई ऐसा ना समझे, और ज़रूरतमंद हैं उनको लिए मज़ीद दें, जो भी कर सकते हैं। अच्छाई वो है, 3 हिस्सों में बांटा गया उलमा ने। मैं तो समझता हूँ एक ही हिस्सा है रमज़ान का, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा रहमतों का और मग़फ़िरत का, निजात का। मग़फ़िरत हो गई तो सभी हो गए, रहमत भी हो गई, सभी है सब लोग। पहला रोज़ा है रमज़ान का और हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत रौनक दिखाई दे रही है। मैं जैसे अभी हज़रत शब्बू मियाँ साहब ने आपको बताया कि खानकाह नियाज़िया ये तहज़ीब का, अदब का, मज़हब का एक चमन है। तो चमन में जो आता है वो खुशबुएँ लेके जाता है और चमन अपने आप में एक गुलदस्ते की तरीके से होता है। ये खानकाह नियाज़िया का बहुत बड़ा तसर्रुफ़ है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की ही गद्दी आई है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की आप देखते हैं कि हर मज़हब व मिल्लत का आदमी हाज़िर रहता है। वहाँ कोई तफरीक़ नहीं होती, कोई किसी से भेदभाव नहीं होता है। वहाँ से लोग मोहब्बतें बटोर के ले जाते हैं और अपनी सारी तमन्नाएँ पूरी करके जाते हैं। इसी तरीके से खानकाह नियाज़िया भी एक ऐसा इदारा है, चिश्तिया कादरिया सिलसिले का इतनी बड़ी खानकाह है जो आलम में मशहूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐसा शोहरत का काम नहीं करते हैं जिससे कि लोग जो हैं वो गलत फहमियों में हों। हम जो यहाँ पे होता है, जो इतना लोगों को दिखता है उससे ज़्यादा है,
लोगों के पास ये होता है कि जितना है उससे ज़्यादा दिखाते हैं। ये खानकाह की ही खासियत है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा दस्तरखान लग रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना है, मुतबरिक महीना है, यहाँ पे पूरे महीने इबादत का सिलसिला जारी रहेगा, इफ्तार का सिलसिला जारी रहेगा, तरावी और जो कुरान की तिलावत का सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ से तो पैगाम अमन का तमाम मुल्क में फैलता है और हम लोग कभी भी किसी सियासी उसमें उलझनों में नहीं पड़ते हैं। हमारा मकसद जो है वो प्रेम है, मोहब्बत है, ईसार है, कुर्बानी है और सब्र व तहम्मुल है। यही खानकाह का पैगाम। खानकाह नियाज़िया की अगर हम बात करें तो एक ख़ास बात और भी है कि यहाँ अगर हम देखें आसपास जितनी खानकाह या दरगाह होंगी, सबसे ज़्यादा PhD इस खानकाह में है। तो तालीम को लेकर जो एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, और पहला दर्स भी अल्लाह के रसूल को इक़रा ही दिया गया, जिसका मतलब था कि पढ़ो। तो क्या मकसद, जैसे खानकाह ने उसको ठीक तरह से समझा है या कोई ख़ास वजह और है कि यहाँ? देखिए, हम आपको बताएं कि इस्लाम शुरू हुई इक़रा से होता है। जब आप सबसे पहले वही आई, उसमें कहा गया कि पढ़ो, तो उसमें पढ़ने के लिए ये नहीं कहा गया कि अरबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो या उर्दू पढ़ो या कुरान पढ़ो, या कहा गया पढ़ो। अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले तालीम इस्लाम तो जो मिलती है वो तालीम हासिल करने की मिलती है, और इसीलिए वो हदीसें हैं कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो वहाँ तक जाओ। इसी तरीके से माँ की गोद से कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो, ये हदीसें हैं। और जितने भी उलमा बुजुर्गान दीन रहे हैं और जो इस्लाम के सही अलमबरदार रहे हैं, उन्होंने हमेशा इल्म की तबलीग करी है, इल्म को फैलाया है और इल्म का सिलसिला बढ़ाया है। हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ जब बरेली तशरीफ़ लाए अपने पीर के हुक्म से, तो उन्होंने यहाँ के सबसे पहले मदरसा कायम किया और तालीम का सिलसिला शुरू करा, क्योंकि तालीम एक ऐसी रोशनी है जो कि हमें तमाम अंधेरों से बचाती है और तमाम परेशानियों से बचाती है। तो इस खानकाह का एक बहुत बड़ा वो भी है कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमसे कहा कि बैलेंस तालीम हासिल करो, दुनियावी भी और दीनी भी, क्योंकि कभी कभी मदरसों की तालीम आदमी को अट्टरपंथ बना देती है। तो हमारे यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं वो मॉडर्न एजुकेशन से भी पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं और जो दीनी तालीम है उस पर भी मजबूती से कायम है। तो यहाँ आप देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो PhD हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और बिल्कुल मॉडरेट अप्रोच रखते हैं मज़हब की तरफ भी, सियासत की तरफ भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ भी। हम लोग कभी भी कट्टरपंथी को में यकीन नहीं रखते हैं, ना उसको बढ़ावा देते हैं, ना उसमें मानते हैं। और हम सब लोग खानकाह आप देखते हैं यहाँ पे कहीं कोई गुल्लक नहीं रखा। ये खानकाह जो है ये ऐसी मुनफरिद खानकाह है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई किसी तरीके के चंदा या किसी तरीके से वो न किया जाता। उसकी वजह है कि हम सब लोग खिदमत समझते हैं। हम लोग जो भी हैं यहाँ पे, जितने भी अफराद हैं, ख़ानदानी अफराद हैं, जितने भी हमारे मुरीदीन हैं, वो यहाँ आकर के यहाँ इसकी खिदमत समझते हैं और जो भी उनसे बन पड़ता करते हैं। यही इस खानकाह की तरफ है। खानकाह के बहुत अच्छे जो कलाम हैं वो सुना है, तो कुछ थोड़ा सा चैनल कुछ ज़ेहे सहबाए इरफाने मोहम्मद के बेखुद हैं गुलामाने मोहम्मद ज़हे सहबाए इरफाने मोहम्मद के बेखुद हैं गुलामाने मोहम्मद उन्हीं के रंग में खोए हुए हैं, मज़े के हैं ये अफसाने मोहम्मद ज़हे सहर। ये किनका कलाम था और अपना नाम? हज़रत शाह मोहम्मद तक़ी अजीज़ मियाँ उफ़रात बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम है। अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम अफसर न्याजी। अफसर नियाज़ी साहब से अभी आपने कलाम सुना, शानदार आवाज़ और कलाम जो बोल थे वो भी शानदार थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जितना फ़ायदा रोज़े का है उतना ही सवाब इफ़्तार का है। इफ़्तार के लिए अगर बहुत सी चीज़ें ना हो तो सिर्फ खजूर से भी और पानी से भी इफ़्तार कराने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह हम देख रहे हैं खानकाह नियाज़िया में कि रोज़े का बहुत अच्छा एहतमाम है। कुछ और महफ़िल का भी इंतज़ाम किया है जो मगरिब के बाद सजेगी। हमें देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख़यालात से भी हमें अपने मैसेज से अवगत कराते रहिए।